So I hope everybody is present. Shagun is present. Nice. Akshara, Kriti, Rishita, Ayush, Abhinandan, Askia, Anshika. Nice to see. Good. Askia is there. Uh, there is Shang. Are you here in the class, beta? Nice, Shagun. अच्छा लगा आपको देखकर. Great. हाँ, Shang is also there. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. It's a very interesting topic. And as far as your academic career is concerned, you are studying it for the first time. In 10th class, the topic is named as arithmetic progression. In 11th class, the same topic is named as sequence and series. In 2018 session, there was a question from the same topic that belonged to 11th class NCERT in standard. So there is every possibility that you may get question which may be out of your syllabus. So as far as the syllabus is concerned, we are not supposed to solve the daily life problem as far as the sum of n terms of the EP is concerned. How many of you have already done this topic in your respective schools? I think so. Askar, हाँ हाँ मुझे लगता है आपने शायद मेरे सेशन को भी देखा था. मुझे याद आ रहा है आपने शायद डिमांड की थी इसकी. तो स्टिल ग्रेट. समझ आ गया. व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेशन? कौन बताएगा? सीक्वेंस क्या होता है पहले तो ये बताओ. व्हाट इज सीक्वेंस? कुछ हद तक ठीक है. Sequence is an arrangement of number which follows a definite rule. Right? The arrangement of number which follow a definite rule is known as a sequence. जैसे for example, the set of natural number is a sequence. The set of whole number is a sequence. The set of integers is also a sequence, isn't it? So various examples of the sequences. बड़ा ही interesting topic है. Please सबका focus यहाँ होना चाहिए. This is basically the set of natural number, set of whole numbers, set of infinity, they all are regarded to be sequence. ये सब क्या example है sequence के. And sequence is what? It is an arrangement of number which follows a definite rule. For example, अगर suppose मैं लिखता हूँ Tn is equal to 2n plus 1. So here let n belongs to 1, 2, 3 goes to any value. Right? So this Tn stands for the nth term. This means nth term. Now, what do you mean by nth term? Let's understand it. अगर मैं यहाँ n की वैल्यू को 1 देता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ राइट साइड में भी मुझे n की वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा. और वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2 into 1 is 2 plus 1 3. 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा बेटा जी? 5. 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 7. And in that way I am having certain numbers which are arranged according to this rule. This is known as a rule which provides us the expansion of the same rule. Now ये T1 क्या हुआ? वैल्यू फर्स्ट टर्म. T1 stands for what? ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. अगले आधा घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. T1 stands for the first term. T2 stands for the second term. T3 stands for the third term. Now what are they? 3, 5 and 7. 3 is the value of first term. 5 is the value of second term. 7 is the value of third term. Right? And hence अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है तो हम कह सकते हैं the value of the fourth term is 9. The value of the second term is 5. So have you understood the meaning of that? अभिनंदन समझ आया मैंने जो कहा है?
right? So this is what do you mean by the arrangement of certain number according to the given rule. But we are not supposed to study sequence. Our objective is to understand the meaning of progression. What is progression? Progression is a sequence. Progression भी sequence ही होता है. See, every progression is a sequence, but every sequence need not be a progression. बात ये उठती है सर, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? प्रोग्रेशन दो तरीके का होता है. एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी. As far the GP is concerned, you will study about GP in your 11th class. We are restricted to study at the 10th level. What do you mean by arithmetic progression and the questions related to it? Right? So, पहले बात उठती है कि हम AP को कैसे डिफाइन करेंगे, GP को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी बात की बात है. असल मतलब ये देखना है कि प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है. ध्यान से सुनना, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस. Or we can say progression is an arrangement of certain number according to a definite pattern. एक पैटर्न के मुताबिक, रूल के मुताबिक नहीं, एक पैटर्न के मुताबिक अगर हम इन्हीं नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं. तो दो तरीके के पैटर्न हमारे सामने यहां अवेलेबल है. एक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरे का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Arithmetic progression is defined as a progression in which the numbers are arranged in such a way that the consecutive terms are acquired with the same common difference. अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बोली है मैंने, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी अगर आपका ध्यान यही है तो. जैसे मैंने ये लिखा 3, 5, 7, 9, राइट, 3, 5, 7, 9, 11, so on and so forth. फिर मैंने अगर सपोज लिखा 4, 7, 10, 13, सपोज मैंने लिखा 7, 12, 17, 22, so on and so forth. All these are nothing but they are the examples of arithmetic progression. Now, how is it possible for us to recognize that this all the three belongs to the AP? See, here the first one is concerned 3, 5, 7, 9 and 11. ये अरेंजमेंट है या नहीं? अरेंजमेंट है, ये तो आपको पता है. अब इस अरेंजमेंट में खासियत है, मैं आपसे अगर पूछूं, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा. सेकेंड टर्म की क्या वैल्यू है इसमें ऋषिता, इस वाले में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म? एक्सीलेंट. द वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म इज 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इसके अंदर कृषांक? वेरी गुड, ठीक है ना. तो आप देखिए, पहली टर्म की वैल्यू 3 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 7 है, चौथे की 9 है. तो इसमें खासियत ये है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स की तरफ ध्यान दो. कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक. 3 के बाद क्या? 5. 5 को मैं अगर 3 से माइनस करूं तो आंसर क्या आया? अगर मैं 7 को 5 से माइनस करूं तो आंसर क्या आया? अगर मैं 9 को 7 से माइनस करूं तो आंसर क्या आया? और 11 को भी मैं 9 से माइनस करूं तो भी आंसर क्या आया? तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की खासियत यह है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनको, उनमें से जो पहली टर्म दूसरी टर्म को पहली टर्म से जब हम माइनस करेंगे तो वो जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी. तो मैंने क्या कहा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस in which certain numbers are arranged in such a way that consecutive terms are acquired with same common difference, right? What about this one? अब इसको भी देखें आप. 7 में से 4 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 10 में से 7 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तीसरे के केस के अंदर देखें, 12 में से 7 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 17 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो
तो हमने इसमें भी और इसमें भी ये देखा कि लगातार रखी हुई वैल्यूज को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हायर को लोअर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिफरेंस हमेशा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का सेम आएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? प्लीज इतनी ईमानदारी से सेशन ग्रहण करो, कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। राइट, आयुष तुम हो सेशन के अंदर? आयुष इज एब्सेंट इन टुडे सेशन। हाँ है आयुष, गुड गुड, राइट, क्लियर हो गया ये? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ आया? मैं फाइनली इसको रिपीट कर रहा हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोग्रेशन और ए सीक्वेंस इन विच द नंबर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर एक्वायर्ड विद द सेम कॉमन डिफरेंस। राइट, सो एपी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने जो पाया वो लगातार एग्जिस्टिंग टर्म्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस सेम आएगा। तो हर एपी के अंदर, चाहे कोई सा भी एपी क्यों ना हो, एवरी एपी कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हर एपी के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बेटे, एक होता है ए, दूसरा होता है डी। Every arithmetic progression is characterized by two important terms. A stands for the first term. A stands for the value of the first term. यानी कि what should be the value of A for this one? A should be 3. What should be the value for this one? A should be 4. What should be the value for this one? A should be 7. It is as simple as that. तो ये स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी। हर एपी की खासियत क्या है कि उसके अंदर पहला टर्म होगा। नेचुरल सी बात है, कोई भी एपी जब स्टार्ट होगा तो एक नंबर से तो स्टार्ट होता है और उस नंबर का नाम है ए। और ये जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं, डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। जो भी डिफरेंस सामने आता है दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर जो डिफरेंस हमारे सामने आता है उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एक तो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट किया, और कॉमन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि किन्हीं भी दो टर्म को उठाकर देखो, डिफरेंस की वैल्यू सेम ही आती है। Every AP is characterized by two terms of A stands for the first term and D stands for the common difference. यानी कि किसी भी AP को बनाने के लिए अगर हमारे पास A और D है तो हम बना सकते हैं। कैसे, वो हम आगे थोड़ी देर में देखने वाले हैं। यहां तक कुछ पूछना है? तो एवरी एपी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, थोड़ा आपको नॉलेज के लिए जीपी के बारे में भी बता दूं। व्हाट इज जीपी? GP is defined as a progression of a sequence in which the numbers are arranged in such a way that consecutive terms are acquired with the same common ratio. Same common difference नहीं, are acquired with the same common ratio. For example, 2, 4, 8, 16, 32, 64। जरा ध्यान से देखिए, इसमें इसे हम जीपी कहेंगे। क्यों जीपी कहेंगे? क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, 64/32 सबका डिवीजन एक ही आ रहा है या नहीं आ रहा? 2, राइट। सो सच काइंड ऑफ नंबर, right, arrangement of number where the consecutive terms are acquired with the same common ratio, यानी कि डिवाइड करने के बाद सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू अगर एक ही आती है, उस कॉमन रेशियो को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां भी फर्स्ट टर्म को हम a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि द GP is characterized by its two term a and r. This is one of the most prominent topic. Sequence and series will help you to understand permutation and combination in 11th, or certain questions that belongs to the G level or IIT advanced level, and at the same time finally helps you to understand probability, which is the most typical topic at the 12th level, not only for the CBSE but for the entrance as well.
तो ये जो टॉपिक है ये पी एंड सी से भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी तीनों को रिलेटेड है और अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है और आज तक का रिकॉर्ड है कि 40 साल की हिस्ट्री में आईआईटी मेन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट पेपर में एपी से रिलेटेड यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो यू इसका बेस, इसका आधार अभी आप तैयार करो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो सिलेबस इन्होंने डिलीट कर दिया, उसकी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, उसे आप कवर करो, चाहे बोर्ड के पेपर खत्म होने के बाद करो, राइट। और ऐसा तरीका बता दूंगा, चाहे हमसे पढ़ना या कहीं भी पढ़ना, आप 2 साल के बाद आप चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर दोगे। क्रैक मतलब कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत डिफिकल्ट बात है आज की डेट में। सोचो एवरेस्ट की चोटी के बारे में, कहीं भी तो पहुंचोगे ही फिर, राइट। तो भाई इसे हम जीपी कहते हैं। तो जीपी इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। इतना इसमें ना आप एक तरीके से इंटरेस्ट लो, आप भूल जाओ कि आपको पढ़ाई कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि अपने को कोई एग्जाम देना है या कुछ, हमें हम एक तरीके का नंबर गेम खेल रहे हैं और हमारे सामने एक पजल है, एक क्वेश्चन है जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी याद करा करके एक गेम की तरह हमारे पास पजल है, उसे हमें सॉल्व करना, दैट इज इट। अगर इस निगाह से देखोगे तो आपको इस टॉपिक की कमांडिंग स्टेट के अंदर आपको जो नॉलेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको पता लग गया भाई जीपीबी किसे कहते हैं, एपीबी किसे कहते हैं। जीपी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, अब सीधी बात करते हैं हम एपी की, राइट। फाइनली स्पीकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एन एपी? एपी के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, राइट। चलिए एक काम करते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, ये तो 3 की टेबल हो गई। ये 3 की टेबल में क्या 3 की टेबल जो है वो एपी है या नहीं? हाँ या ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म? 3, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 3। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको किसी भी एपी का स्केलेटन बना के दिखा रहा हूं। जैसे ह्यूमन स्केलेटन है ना, सबका ह्यूमन स्केलेटन तो सेम ही है, दिखने में एक जैसा ही तो दिखता है, राइट। भाई जो डॉक्टर्स बनेंगे वो तो जाती सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन ही लटका देखेंगे। एमबीबीएस वाली मूवी नहीं देखी आपने संजय दत्त की? वन ऑफ द बेस्ट मूवी, नहीं? मेरा कभी भी अगर मूड फ्रेश करने का मन करता है तो मैं लगा लेता हूँ उस फिल्म को। क्या बेहतरीन ढंग से उसने एंट्रेंस क्लियर किया था। यार ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, राइट। तो हम किसी भी एपी की बात करें तो वी शुड बी एबल टू क्रिएट इट्स जर्नल स्केलेटन। तो जरा 6 को ध्यान से देखो, कॉमन देखो, ए क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई इसका? डी क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? कॉमन डिफरेंस 3 है या नहीं? बताओ, ये सबको मालूम है या नहीं? तो क्लास अटेंड करना बेकार है। तो यहाँ डी की वैल्यू 3 है। अब जरा 6 की जो सेकंड टर्म है उस 6 को ध्यान से देखो, क्या मैं उस 6 को a प्लस डी लिख सकता हूं? क्या मैं 9 को a प्लस 2d लिख सकता हूं? जरा देखो ध्यान से, a क्या है हमारा? 3, 2, d क्या है हमारा? 3। मैं बिल्कुल है ना एकदम हल्के से आराम आराम से टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं। क्या तुमने जड़ पकड़ ली? फिर हम भागेंगे इसमें, राइट। तो 3 प्लस 2 डी इज दिस, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3, 2 इंटू 3 होता है 6, आंसर आ गया 9। क्लियर? तो इसी तरीके से ये जो 12 है इसको क्या मैं लिख सकता हूं? a प्लस 3d। इसको लिख सकता हूं ना a प्लस 4d, राइट। अब ये जो यहां मैंने वैल्यूज लिखी हैं, कितनी वैल्यू लिखी हैं? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म
वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म A1 को A भी कह सकता हूं मैं। द वैल्यू ऑफ A1 इज A, आधी से कम दे दियो। द वैल्यू ऑफ A2, जो कंपनी दे रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ A2 इज व्हाट, यहां पर A2 की जो वैल्यू है उसको मैं क्या कह सकता हूं, A प्लस D। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म को मैं कह सकता हूं A प्लस 2D। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म को कह सकता हूं मैं A प्लस 3D। ऐसे ही तो दिखाया नहीं मैंने, प्लीज देखिएगा ध्यान से। वी आर एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज A, जो कि है यहाँ पर 3। वो क्या है, वो बात की बात है, लेकिन इतना क्लियर हुआ है नहीं। अब आप देखिए सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है। सेकंड मैं यूज कर रहा हूं ना, सेकंड, ये 2 है, तो डी के आगे क्या है हमारे पास, डी का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखी हुई वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर यहाँ 2 है तो डी के साथ है 1, 1 इंटू डी तो डी होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है, डी की वैल्यू 2। यहाँ 4 है तो डी की क्या है 3। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ 3, द कोफिशिएंट ऑफ 3, राइट। द कोफिशिएंट ऑफ 3 हियर, सॉरी द कोफिशिएंट ऑफ डी, डी की बात कर रहा हूं मैं। द कोफिशिएंट ऑफ डी इस केस के अंदर 3 से कम है ना, एक पॉइंट कम है या नहीं। यहां फोर्थ टर्म में डी की का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। यानी कि जिस किसी भी टर्म की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके में अगर जो डी है उस डी का कोफिशिएंट उससे एक वैल्यू कम है या नहीं। वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 15 है ना। फिफ्थ टर्म की वैल्यू 15। और 15 की वैल्यू निकालने के लिए मैं a प्लस 4d भी यूज कर सकता था। a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या है मेरी 3, 4, d मुझे मालूम है 3। आंसर कितना आया, 15 आया या नहीं आया बताओ। अगर मान के चलो 3 और 6 ही होता मेरे पास, 3 और 6 ही होता, तो फिफ्थ वैल्यू मेरे को निकालने के लिए क्या करना था, वैल्यू तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना था, a फिफ्थ अगर मुझे निकालना है तो a प्लस 4d लिखता है या नहीं, यहां तक क्लियर है। अब चलो फिफ्थ तक की वैल्यू हो गई। अब यहां पर मैं जानना चाहता हूं, अब ये ना कभी खत्म नहीं हो रहा सीक्वेंस। अब मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 500, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 500th टर्म। यानी कि मैं बात कर रहा हूं a 500 की क्या वैल्यू होगी। तो अब होगी ना थोड़ी मुश्किल। अब मैं इस मुश्किल को आसान करता हूं, प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए प्लीज। आपको आता भी है तो भी यहां ध्यान से देखिए। n की वैल्यू क्या, 500 है ना। फिर a, मैंने कहा ना कि जो n है वो यहां पर एक वैल्यू कम है उसकी d के साथ, तो d के साथ मेरे क्या करना चाहिए, 500 में एक माइनस कर देना चाहिए या नहीं। तो मेरे पास क्या आएगा, a की वैल्यू है 3, ये है 499 हो गया, d है हमारा अगेन 3, और ये वैल्यू आ गई आंसर 1500। यानी कि जब हम इसको लिखते जाते दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सौवीं 150 200 300 400 और 500 टर्म पर जब पहुंचते तो हमको ये पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। 500 की वैल्यू हमारे पास सीधी आ गई ना। द वैल्यू ऑफ द 500th टर्म इज 1500। डिड यू गेट इट और नॉट। तो 500 क्या, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक जर्नल फॉर्मूला हमारे सामने आ गया और वो ये है ए nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d।
This is the formula, right, that helps us to find out the value of the nth term of an AP whose first term यानी कि A and common difference यानी कि D, right, are known to us. तो अगर किसी भी AP की पहली टर्म यानी कि A और अगर उसका कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम है तो मैं उस AP के किसी भी nth टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं. यहां तक कोई डाउट? इस बात की कुछ एग्जांपल लूंगा मैं. क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? ये फार्मूला समझ आया कि भाई ये फार्मूला क्यों है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस फार्मूला. यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो स्केलेटन आ गया, किसी भी एपी का स्केलेटन मेरे सामने क्या आया, फर्स्ट टर्म आती है ए, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी. द वैल्यू ऑफ द सेकंड टर्म इज व्हाट, ए प्लस डी. द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म डी देखो 1 हो गया ना 2 से नीचे. थर्ड टर्म ए प्लस 2d. फोर्थ टर्म ए प्लस 3d. फिफ्थ टर्म a प्लस 4d. चलते जाओ इसी तरीके से nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d. दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट टू क्लियर यू. दिस इज नोन एज द स्केलेटन ऑफ एन AP. किसी भी AP को अगर क्रिएट करना है तो ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करते हैं. और वैल्यू ऑफ द nth टर्म निकालने के लिए हमको उस सीक्वेंस को वहां तक एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है. हम सीधा n जो भी चाहते हैं उसका हम आंसर निकाल सकते हैं. क्या ये क्लियर है? ग्रेट. अब हमने एक और एग्जांपल यहां दिया था 7, 12, 17, 22. 7, 12, 17, 22. तो यहां तो इसकी फोर्थ टर्म की वैल्यू तो मुझे मालूम है, फिफ्थ की भी मैं निकालूंगा तो 27 लिख दूंगा. बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 27th 100? अगर मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स 81th टर्म. 81th टर्म, द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म इज 27. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 81th टर्म? तो मैं क्या करूंगा, ए फार्मूला यूज करूंगा. ये अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दूंगा 81 ए प्लस 81 माइनस 1 इंटू डी. और मुझे मालूम है इसका ए है 7, ये हो गया 80, कॉमन डिफरेंस है इसका 5. तो आंसर क्या हो गया 7 प्लस दिस. कितना आंसर आ गया 487. 407 आएगा बेटा, राइट? भाई क्लियर है या नहीं? अगर इतना समझ आ गया तो मैं जितने भी क्वेश्चन लेने वाला हूं वो एफर्टलेसली सारे क्वेश्चन होंगे तुमसे. प्लीज पूछिए कुछ डाउट, कोई डाउट? अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां लिख देंगे, यूं चलते जाएंगे, यहां लिख देंगे 89 फॉर एग्जाम्पल. और आपसे पूछेंगे क्या इस एक्सपेंशन में कहीं 89 वाकई में आएगा? विल 89 बी द वैल्यू ऑफ एनी एन टर्म? यानी कि मैं खोलता जा रहा हूं ना 27 के बाद क्या आएगा 32. तो क्या कहीं ऐसे चलते चलते 89 हमें दिखाई देगा रास्ते में? तो मैं क्या करूंगा, यानी कि द क्वेश्चन इज डिमांडिंग व्हाट, दैट ये जो 89 वैल्यू है ये किस टर्म की है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट.
तो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करूंगा nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d 89 वैल्यू गिवन है, यानी कि nth टर्म की वैल्यू गिवन है। मुझे n नहीं मालूम कि कौन से n पर है ये 89 की वैल्यू, तो मुझे निकालना है इसमें n। एक है 7, राइट, n मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ 5, तो 89 इज इक्वल टू 7 प्लस 5n माइनस 5, तो 89 राइट इज इक्वल टू व्हाट, 7 माइनस 5 हो गया 2 प्लस 5n। अब ये 2 इधर आ गया, 89 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये हो गया 87 इज इक्वल टू 5n। तो n क्या आ गया 87 बाई 5। अब देखो, जब हम वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली मूविंग इन टर्म्स ऑफ n टर्म्स, और वो n हमेशा नेचुरल नंबर है। हम यहाँ ये थोड़ा ना कह रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी एपी में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 टर्म या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द टर्म। ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट करती है? कर ही नहीं सकती। एक के बाद तो दो ही आएगा, दो के बाद तीन आएगा, लेकिन यहाँ n की वैल्यू आ गई एक रैशनल नंबर में। अगर ये n की वैल्यू आ जाती प्योर नेचुरल नंबर में, तो ये 89 एग्जिस्ट करता। क्योंकि n आया है हमारा इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, और जो कि बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, तो 89 इस एक्सपेंशन के दौरान रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे that 89 will not be the value of this AP। तो मतलब मैं 8-10 क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इट। आदित्य समझ आ रहा है? ईशान क्लियर है? आयुष, अभिनंदन, आयुष क्लियर है बेटा? So in that way, we have understood the concept behind an AP। इस चैप्टर के दो कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट तो कर लिया, अब इसको यूज करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन निकालने हैं, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्टरी फेज है हमारे टेस्ट सिलेबस में, राइट। असल कहानी जो थी वो सिलेबस से निकली हुई है, और वो कर लेना, दिक्कत आ जाएगी आगे फ्यूचर के अंदर। बोर्ड में तो खैर नहीं आना। तो चलिए, अब हमें अगर सारा समझ आ गया तो मैं क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ? कैन आई स्टार्ट विद माय प्रॉब्लम्स? करो आप, देखो ईमानदारी से निकालने की कोशिश करना, तो आपको घर पे फिर दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर खुद निकालोगे, तो फिर इसी की अपना पीडीएफ बनाया और मुझे भेज दिया। दोबारा क्यों करोगे इसको? जो क्वेश्चन यहाँ समझ आ गए उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो आप, मतलब मेरा कहने का, जब क्लास में कर रहे हो या घर पर कर रहे हो और पीडीएफ तुम्हारा जो है उसमें तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंस है कि सारे मेरे करे हुए क्वेश्चन है मुझे आते हैं, तो वो पीडीएफ जो आप मुझे भेजोगे तो वो आपकी प्रिपरेशन हो गई, काम खत्म। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 14, 9, 4, -1, -6। पहले तो ये बात पूछिए, क्या ये एपी है? इज इट एन एपी? एक्सीलेंट, ये एपी है। तो ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर, इसमें, और डी की वैल्यू क्या है? 5। 5 इज नॉट ए करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? -5। बेटा कंसेक्यूटिव टर्म, अगली टर्म को पिछली से माइनस करते हैं, तो 9 - 14 करेंगे तो बेटा जी -5 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसका -5 है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप समझ में आ गया। हर्षिका क्लियर है? फाइन।
So A is 14, D is -5. What is the value of the 12th term? मुझे निकाल के दिखा दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 12th टर्म। फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये है फार्मूला यूज होता। आंसर आया बेटा -40। या सभी का यही आंसर है? हाँ बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी करेंगे। मैं तो आपको समझ बिगिनिंग है ना, इसलिए बार बार ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं तो पता सीधा क्या करना था। 12th वाले टर्म की वैल्यू थी ना, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो सीधा लिखना दिस 11 into -5 खत्म। यस करेक्ट। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ द सेम वन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म? हाँ तो सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ ना। 19 minus 5 is the correct number. The value of the nth term is equal to a plus n minus 1 d. तो a हमारा इस केस के अंदर कितना है 14, राइट, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है इसमें -5। सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 5n आ जाएगा, राइट। तो आप ये देखिए वैल्यू ऑफ द nth टर्म क्या आया 19 माइनस 5n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n में जरा 1 पुट करना, तो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या आई, n में अगर मैं 1 पुट करूं तो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म कितनी आई 14। सेकंड टर्म कितनी आई, थर्ड टर्म 4 आएगा, -1 आ गया ना भाई सीक्वेंस। यही आया है नहीं आया? गॉट इट? दैट मींस what is this nth term which is equal to 19 minus 5n? This is the formula, this is a definite pattern which creates an AP, right? तो आई होप ये बात समझ आ गई आपको। किसी को कोई डाउट? अच्छा, nth टर्म ये है, n माइनस 1 टर्म, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, nth टर्म की वैल्यू तो ये है, दिस विल गिव मी द राइट हैंड साइड विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द nth टर्म। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n माइनस 1th टर्म, मतलब इससे एक टर्म पहले की मैं जानना चाहता हूं। जरा बताना सॉल्व करके क्या है। ट्वेंटी फोर माइनस 5n, राइट। सभी का ये आया नहीं? तो यानी कि मेरे पास nth टर्म ये है, n माइनस 1th टर्म ये है, यानी कि इस टर्म से पिछली टर्म की वैल्यू ये है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, nth टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं n माइनस 1th टर्म से, इसे इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं, यानी कि 19 माइनस 5n को मैं माइनस कर रहा हूं 24 माइनस 5n से। तो व्हाट शुड बी द आंसर? -5। What is -5? -5 is D, right? And hence the formula for the common difference, if I am available with the nth term, can be written as nth term minus
n माइनस वन टर्म, किसी भी nth टर्म को माइनस करेंगे उससे पिछली टर्म से, तो क्या आंसर आएगा? कॉमन डिफरेंस, दैट रिजल्ट्स इनटू कॉमन डिफरेंस, राइट? So here it completes an important formula, another important formula apart from nth term as a plus n minus 1d. Right, switching on to the next question now. What is the value of 105th term for the given APS? Right. Wait, honesty on your own. 56. What is D in this, Abhinandan? What is D? Ayush, tell me what is D in this case? D क्या होगा इसमें? D कैसे निकालते हैं भाई? अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं ना. ये 4 1/2 है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, 8 प्लस 1 9/2 माइनस 4, राइट? 2 कॉमन, 2 एलसीएम आ गया. डी की वैल्यू कितनी आई? 1/2. तो 105th टर्म क्या आएगा हमारा? ए क्या है हमारा? 4 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी. आंसर कितना आया हमारा सॉल्व करने के बाद? 56. एग्रीड? सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है? सुप्रीति सब समझ आ रहा है बेटा? अक्षरा आपको? Now the fourth question. 2, 7, 12, 17. क्या 87 इसके रास्ते में कहीं आएगा? Will 87 come while expanding the same? आएगा या नहीं? कौन सी टर्म पर आ रहा है? Will 81 come along this? But the value of the fourth term is 17. तो क्या value of which term is 87? So nth term is a plus n minus 1d. 87 a, कौन सी टर्म की वैल्यू 87 है? तो n माइनस 1 करना पड़ेगा. d मेरा 5 है. सॉल्व करेंगे तो n कितना आ गया हमारा? 18. ये 18 सही भी है, गलत चेक भी कर लो आप. 18 फर्स्ट टर्म है 2, 18 में तो 17 हो गया. कॉमन डिफरेंस कितना है? 5. तो आपको 87 ही आंसर आएगा. चेक कर लो. राइट और नॉट? फिफ्थ is 51 a term of 5, 8, 11, 14?
है 51 है। अच्छा आपका क्या? नो बेटा, इसका आंसर नो है। 51 इसके रास्ते में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 51 एन एस टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू क्या है 5, एन हमको निकालना है, डी है 3, एन सॉल्व करके कितना आया? 49/3 which is not a natural number. Therefore, 51 will not belong to this sequence. Right? So it amounts all 5 questions. I think so आपको क्लियर हो गए होंगे। 100% एक क्वेश्चन इसमें आएगा 1 या 2 नंबर में। अगर मेरी क्लास समझ आ रही है और आगे की सारी क्लास आपने अटेंड की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ the fifth term of a given AP, if the value of the fifth term of a given AP is 22 and 14th term is 58, then find that AP निकालो and also find its 19th। AP बनाने के बाद उसकी 19th term की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। That's what the question is. Please stop writing. Anyway, who is confident to put up the answer behind the scene? हाँ बेटा जी, कैसे बताओ, कौन कैसे इक्वेशन यूज करेंगे? Yes, you are right. This is simply an excellent answer. बिल्कुल ठीक है, राइट। लेकिन अब क्या करेंगे? अब देखो, जिसको थोड़ा भी समझ नहीं आया उसे समझा रहा हूं। हमको एपी निकालना है, अब तक तो एपी गिवन था, अब एपी बनाना है। और एपी बनाने की कंडीशन क्या है कि जिस एपी की बात हो रही है उसकी फिफ्थ टर्म की वैल्यू मुझे मालूम है, उस 14th टर्म की 58 वैल्यू वो भी मुझे मालूम है, और मुझे एपी बनाना है। और आपको याद होगा मैंने कहा है कि एवरी एपी इज कैरेक्टराइज्ड विद द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आप कहेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी। कितना सबको क्लियर है या नहीं? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट? चलो अच्छा सर, अच्छा जिसको नहीं है डाउट वो बोलो, जिसको क्लियर है वो मत बोलो, जिसको डाउट है तो बोलो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भूल कर भी मत सोचना कि भाई किसी तरह की कोई इंसल्ट है, पूछ लिया तो आसान है वो है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। रेस्पेक्ट योर टाइम, रेस्पेक्ट योर सेल्फ। 100% चीजें समझ आनी चाहिए। ये सेशन ऐसे जाए कि आपको इसकी प्रैक्टिस ही ना करनी पड़े, आपको जिंदगी भर के लिए समझ आए। इतनी अवेयरनेस के साथ क्लास अटेंड करो। हमको एपी बनाना है, और एपी बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। तो हमको यहां पर गिवन है कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 22। तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ? ए प्लस 5 - 1 डी इज इक्वल टू 22। यानी कि मैं जो पूरा काम कर रहा हूं ए और डी निकालने के लिए कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं a प्लस 4d मेरे पास है 22, और यहाँ 14th है, तो मैं कह सकता हूं a प्लस 13d है मेरे पास 58। अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया नहीं, एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, x प्लस 13y इज इक्वल टू 58। डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व इट। x और y की वैल्यू यानी कि a और d की वैल्यू बताओ क्या है? a 6 आ गया और d 4 आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? जिसको डाउट है
वो बोलोगे सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, मैं दोबारा बताऊँ। मैं मान के चल रहा हूँ आप सबको क्लियर है। नाइस, गुड। तो a इज इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4। अब मेरे पास a और d आ गए। अब एपी बनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। एपी का स्केलेटन मुझे मालूम है, ये होता है एपी का स्केलेटन। 6, 6, फिर 10, पता लग गया कॉमन डिफरेंस क्या है 4, फिर 14, फिर 18, दैट्स इट। और 19 टर्म की वैल्यू भी बता दो अब इसकी। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा आपके एग्जाम के अंदर, फ्री के नमाज से। क्यों आएगा? बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट ओनली, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नॉट ओनली रिलेटेड टू एपी बट आल्सो रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट। देखो धीरे धीरे मैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा विच विल नॉट बी द कप ऑफ टी ऑफ एवरी चाइल्ड। जिसको ये सेशन समझ आ रहा है वो आगे के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये टॉपिक आसान भी है, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो इससे डिफिकल्ट टॉपिक पूरे मैथ में नहीं है। इसलिए थोड़ा अवेयरनेस के साथ सेशन अटेंड करो। ये छठा क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लिया nth टर्म हमको गिवन है 5n-2, ये गिवन है। आपसे कहा है भाई फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगी इसकी, इसकी 19th टर्म भी बताओ और इसका कॉमन डिफरेंस भी बताओ। ए भी बताओ, डी भी बताओ, 19th टर्म भी बताओ। करो सर। तो सारा पॉलिनोमियल समझ आ रहा है? कितनी क्लास अटेंड कर ली तुमने पॉलिनोमियल? सारी समझ में आ गई ना? तो राइटिंग में प्रैक्टिस की उसकी? नहीं, तुमने क्लास अटेंड की? मैं तो टेस्ट लेने वाला हूँ उसका, आज क्लास के बाद मैं बता रहा हूँ कब टेस्ट है। पॉलिनोमियल के टेस्ट की बात कर, पॉलिनोमियल का अलग से टेस्ट लूंगा तुम्हें, आज नहीं दूंगा, लेकिन टेस्ट लूंगा। ये मैं बता रहा हूँ 5 क्लास तक का तेरा पूरा ढंग से रिवीजन है ना। हाँ बेटा, आप क्या अटेंड कर रहे हैं? ठीक है। अब ये आंसर क्या है? फर्स्ट टर्म एन में 1 पुट करेंगे, 5 इंटू 1 इज 5, 5 माइनस 2 इज 3, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3। डी निकालना है। अब डी निकालने के लिए मैं 2 निकाल कर भी कर सकता, दो तरीके हैं डी निकालने के। मैं सेकंड टर्म की वैल्यू निकाल, राइट। ये सब्ट्रैक्शन क्या आया हमारा? 8। सेकंड टर्म की वैल्यू 8 आ गई। थर्ड टर्म, थर्ड भी निकाल लो फिर ऐसे एक बार और कंफर्म करने के लिए। 3, 8, तो ये थर्ड टर्म अगर हमने ये लिया तो ये कितना आ गया? 30। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 8 माइनस 3, 13 माइनस ये आ गया 5। एक तरीका तो ये है। दूसरा अभी मैंने बताया था आपको, डी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? nth टर्म माइनस ए एन माइनस 1th, यानी कि 5n-2, बताया था ना 5 फार्मूला। और 5n-1 का मतलब क्या? n में n-1 पुट करेंगे, -2। इसे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? आई होप बात समझ आ गई होगी। एट्थ वन, निशांक समझ आ रहा सब? फाइंड एक्स, क्वेश्चन है एक्स निकालो। 2x, एक्स प्लस, सिद्धार्थ तुम हो क्लास के अंदर आज? 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2, ये जो है एपी में है, तो x क्या होगा?
व्हाट इज एक्स? जिससे आंसर पूछूंगा वही बताएगा, कोई और आंसर नहीं बताएगा इसका। लास्ट 30 सेकेंड्स। सुकृति, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स? सुकृति आंसर बताओ, एक्स क्या है? आप क्लियर है? सिद्धार्थ, कोई कट रही है क्या? आप सबके साथ ऐसा हो रहा है? तो आपके नेट में प्रॉब्लम है किसान। तो आप आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है बेटा। सबको क्लियर है ना मेरी वॉइस? सबको स्पॉन्टेनियस है ना एकदम? हाँ भाई, एक्स कितना आया बताओ। आप बताओ। किसान नहीं है। ऋषिता, आप बताओ क्या है एक्स? अच्छा, कोई बात नहीं। अभिनंदन, आप बताओ। एक्सीलेंट, एक्स 6 करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो तीनों एपी में हैं और एक्स निकालना है। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि सेकेंड टर्म में से माइनस करूंगा मैं फर्स्ट टर्म, और तो इन दोनों का माइनस करके डी आया, और इन दोनों को भी मैं माइनस करूंगा तो भी डी आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब इसे सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करना इज नॉट ए बिग टास्क। अब तो ये क्वेश्चन 7th क्लास का हो गया। कितना एक्स आया है इसमें शगुन? 6 आ गया। 6 आने के बाद इसमें डाल दो 2x मतलब 12, 6 प्लस 10 16, 6 18 प्लस 2 20, बन गए वो 18। आई होप ये क्लियर है या नहीं? अभी भी? वेरी नाइस। तो मैं आगे बढ़ूंगा अब। शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Ninth question is the most important. 24, 21, 18, 15, अगर हम ऐसे इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, which term is the first negative term? इस एक्सपेंशन में करते करते क्या नेगेटिव टर्म आएगी, और अगर आएगी तो वो कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू पहली नेगेटिव वैल्यू होगी? दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां फोकस रखें। अगर आपको आता है तो करें, जिसको थोड़ा भी डाउट है वो बिल्कुल ना करें। यानी कि द वैल्यू ऑफ एनएस टर्म, नेगेटिव का मतलब क्या? शुड बी लेस देन 0 और नॉट। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? हर को वैल्यू नेगेटिव होगी जो 0 से छोटी होगी। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एनएस टर्म शुड बी लेस देन 0, ये हमें देखना है। एनएस टर्म का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। a क्या है यहां पर? 24। n मुझे मालूम नहीं क्योंकि वही तो निकालना है मुझे। और d की वैल्यू क्या है भैया? d क्या है? -3 लेस देन 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 24 माइनस 3n प्लस 3, ये हो गया ना 3 प्लस 3 लेस देन 0। ये हो गया 27 माइनस 3n लेस देन 0। ये हो गया 27 लेस देन 3n। या मैं कह सकता हूं 3n, 27 का 3n से छोटा है, यानी कि 3n बड़ा है 27 से। ये क्लियर है ना मैंने जो लिखा है? तो n क्या हो गया? ग्रेटर देन 27/3, यानी कि 9।
एंड n फाउंड टू बी ग्रेटर देन 9, यानी कि n से n जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ी टर्म, 9 के बाद 9 के बाद क्या था 10। The value of the first negative term should be 10. N equal to 10 is the answer. क्या लॉजिकली समझ आया है इसका आंसर? ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये जब माइनस थ्री एन इस साइड जाएगा तो बेटा जी 27 इज लेस देन 3n। या मैं अगर 27 3n से छोटा है तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं 3n 27 से बड़ा है। तो n में 3 नीचे आ गया, 27/3 9 आ गया नहीं। और n ग्रेटर देन 9 मतलब टर्म तो हमेशा नेचुरल होगी। तो पहली नेगेटिव टर्म ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए, यानी कि 9 के बाद अगला नेचुरल नंबर 10 आता है। तो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू वुड बी 10। द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू फॉर द टर्म 10। क्लियर? आप ओपन कर देख लो चाहे। आप ओपन करके देखोगे तो 10th टर्म जब आएगी तो उसको पहली नेगेटिव वैल्यू होगी। वो करके देखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझ आ गया। बहुत बार आया है कुछ, वैल्यू चेंज होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी आई। आगे बढ़ो। 10th क्वेश्चन। अब से हम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ से जो मैं कराऊंगा, अब जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक में नहीं। और अब से क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छी क्वालिटी के करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द गिवन एपी eth term eth term of the AP is small q and qth term of the same AP is small p. Then prove that nth term is equal to p plus q minus n. आंसर बात की बात है, पहले क्वेश्चन को समझो और अगर कॉन्फिडेंस है तो तुरंत कर डालो, अदरवाइज अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज। Another 2 minutes.
एनसीईआरटी अटेंड कर ली थी। हाँ हाँ सही बात है। एक भी क्लास नहीं की है ग्रेविटेशन अपलोडेड है बेटा। यूट्यूब पे अपलोडेड है पहली क्लास में। एक क्लास के बाद कपिल सर से मिल लेना। मैं बता दूंगा आपको, उसका लिंक भेज दूंगा। हाँ किस किस से हो गया ये? दिव्यांशु हैज डन इट्स गुड। एनी अदर? नो सी हियर। जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इन द गिवन कोई एपी की बात हो रही है, उस एपी में पीएच, अब तक तो हम बात कर रहे थे फिफ्थ टर्म, 15th टर्म, 17th टर्म, तो न्यूमेरिक वैल्यू सी। पीएच टर्म मतलब टर्म भी न्यूमेरिक था और उसका उसकी वैल्यू भी न्यूमेरिक थी। लेकिन अब तो टर्म भी वेरिएबल है और वैल्यू भी वेरिएबल है नहीं है सर? तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसे ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन एपी, एक एपी की बात हो रही है, पीएच टर्म क्यू है और क्यूएच टर्म पी है, तो हमें प्रूव ये करना है। जब कभी भी एपी की बात होती है तो हम हमेशा एपी को कैरेक्टराइज करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म for the given AP is A and common difference is D. Then according to the question, PH term is Q. तो P यानी कि N की जगह क्या है? N की जगह क्या है? PH term is Q और QH term क्या है? P। और अपने को प्रूव करना है NH term, और NH term क्या होगी? NH term की A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप ध्यान से देखें एनएच टर्म की ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि मेरा पर्पस है ए को निकालना और डी को निकालना। ए और डी अगर मैं निकाल देता हूं और पुट करता हूं इसके अंदर, तो आंसर आ जाना चाहिए या नहीं? लेट इट बी स्मॉल ए। पीएच टर्म इज क्यू। फर्स्ट टर्म ये है, पीएच टर्म अगर क्यू है तो ध्यान से देखो, पीएच टर्म का आंसर क्या हुआ? ए प्लस, है ना, एन की जगह पी है ना, ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि पी माइनस 1 इंटू डी इज क्यू, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज p, राइट और नॉट? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेट है। इसके अंदर एक वेरिएबल x ये है और y ये है, ये x ये y। एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहा हूं मैं यहां। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूं मैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, अगर यहां प्लस है तो नीचे माइनस लेंगे, यहां प्लस है तो यहां माइनस लेंगे, यहां प्लस है तो यहां माइनस लेंगे। कोफिशिएंट तो ऑलरेडी ए और ए का सेम है, तो सीधा मैं ए माइनस ए कट कर दिया, जीरो हो गया ये। और अब जरा ध्यान से देखो, दिस टर्म इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टर्म, यानी कि p माइनस 1 इंटू डी शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद q माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि माइनस के बाद दो टर्म है इसलिए मैं ब्रैकेट ले रहा हूं और इस तरीके से लिख रहा हूं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू q माइनस p। एग्रीड? इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इंप्लाइज का साइन यूज कर रहा हूं। अब इसमें मैं p माइनस 1 माइनस माइनस फिर लिख रहा हूं q माइनस 1, और टोटल इसको मैं d कॉमन ले रहा हूं उसमें। d को मैंने कॉमन ले लिया। क्या ये स्टेप क्लियर है कैलकुलेशन का? कैलकुलेशन इज एवरीथिंग फॉर दिस टॉपिक। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास क्या,
then this is p minus 1 minus q minus किया minus minus plus into d is q minus p. इसमें मैंने माइनस खोल दिया तो प्लस हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल तो बचा क्या p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी. यहां तो p प्लस है यहाँ p माइनस है यहाँ q माइनस है यहाँ q प्लस है. एक काम करता हूं इसको मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनाता हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं देखो इसमें यानी कि ये दोनों सेम है. अगर मैं ब्रैकेट को खोलूं तो माइनस पी प्लस क्यू आया या नहीं आया बोथ आर सेम. अरे किया क्यों है मैंने ऐसा क्योंकि डी आ गया इससे माइनस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई दिस ये नीचे आ गया ये और ये कैंसिल डी की वैल्यू आ गई -1 राइट और नॉट. तो यानी कि जब हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड में तो y जब आ जाता है यानी कि ये y आ गया. अब इस y को आइदर वन ऑफ द इक्वेशन ये फर्स्ट है ये सेकंड में से किसी एक में पुट करूंगा मैं. नाउ पुटिंग e इक्वल टू -1 इन फर्स्ट वी गेट इसमें पुट कर रहा हूं मैं अब इसमें a प्लस e -1 -1 a प्लस p -1 d की वैल्यू -1 आई है इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू. दिस बिकम्स व्हाट a ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ इज इक्वल टू क्यू और मेरे पास a आ गया ये माइनस उस साइड चला गया प्लस हो गया क्यू तो ऑलरेडी प्लस है और ये +1 उधर जाएगा -1 तो a भी आ गया नहीं मेरे पास d भी आ गया और a भी आ गया. दिस इज स्मॉल b दिस इज स्मॉल c और ये चाहिए था ना NH टर्म में a मेरे पास आ चुका है d मेरे पास आ चुका है तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग B and C in A B and C को मैं इस A में पुट कर रहा हूं यानी कि NH टर्म इज इक्वल टू A की वैल्यू है मेरी P प्लस Q -1 राइट A की वैल्यू आ गई ना मेरे पास n-1 और D है मेरा -1 D है मेरा -1 तो NH टर्म कितनी आई P प्लस Q -1 माइनस माइनस हो गया प्लस N इनफैक्ट सॉरी एक काम करते हैं इसे एज इट इज रखते हैं दिस इज P प्लस Q -1 माइनस अब इसे ब्रैकेट ले लो यहाँ राइट और अगर ब्रैकेट ना भी लो तो भी एक काम कर सकते हो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस राइट और नॉट. तो n -1 समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं कुछ गलती कर दी. हाँ ओके 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 लेट मी चेक इट हो सकता है गलती हो गई हो. हम इसको ऐसे लिखेंगे ना NH टर्म इज इक्वल टू P प्लस Q -1 A की वैल्यू प्लस n-1 इंटू -1 ये इतना क्लियर है या नहीं पहले तो ये बताओ. देन NH टर्म क्या होगा इज इक्वल टू P प्लस Q -1 अब ये जो -1 है इस n के साथ मल्टीप्लाई हुआ ठीक कह रहे हो बेटा आप दिस माइनस दिस और ये माइनस माइनस इसके साथ हुआ तो +1 यस यू आर राइट क्लियर. तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया व्हाट आई बी लेफ्ट विद NH टर्म किसके इक्वल आया बचा क्या P प्लस Q -n हेंस प्रूव्ड यही तो प्रूव करना था भाई क्लियर और नॉट. So this is just the starting of these complicated questions. मैंने तो 2 साल पहले पूरी 11th की AP खत्म करा दी थी
मैंने इस लेवल के क्वेश्चन इसमें लिए थे। मेरे पास वो सेशन है, अगर इंटरेस्ट हो और सिलेबस खत्म होने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 10, इन 10 का ईमानदारी से आप रिवीजन कर लो, एक बार सबको दोबारा देख लो, और सबके सब 10 तुम्हें लॉजिकली आने चाहिए। रात को सोने से पहले ही इसका रिवीजन कर लेना, तो फिर ये चीज आपके दिमाग में सीमेंटेड होगी, राइट। अगले सेशन के अंदर हम इसके और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और उस लेवल तक के क्वेश्चन कर लेंगे कि बोर्ड का क्वेश्चन जब आएगा तो इट विल जस्ट सीम्स टू बी वेरी वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू, प्रोवाइडेड आज ही आपको उसका थॉरोली रिवीजन करना है। और हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर समय रहते निकालना है, समय से पहले निकालना है, सॉरी। अगर एक क्वेश्चन 5 मिनट कहता है तो मुझे 3 मिनट में सॉल्व करना है, 9 मिनट वाला जो है मुझे 6 मिनट में सॉल्व करना है, और 3 मिनट वाला 1.5 मिनट में सॉल्व करना है। इसीलिए ये वीकेंड्स के टेस्ट हैं, सॉरी ये वीक डेज के जो टेस्ट हैं वो फ्यूचर के लिए और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए हैं, और संडे का टेस्ट आपको बोर्ड के लिए तैयार करेगा। अभी विद इन 5 मिनट्स मैं आपको इसके नोट्स जो है भेज रहा हूं। हम ठीक 15 मिनट का मैं गैप ले रहा हूं, 15 मिनट आप भी अब बंद कर दो, 15 मिनट का दोबारा आना, इतना थोड़ा भी आप अपनी आईज को रेस्ट दे दो, मैं भी दे रहा हूं। एंड विल मीट एग्जैक्टली एट 6:15।